بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. نیکسٹ ٹاپک ہے وائی از اے کمپیوٹر نیٹورک نیڈیڈ. کہ کمپیوٹر نیٹورک کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش ہے. تو کمپیوٹر نیٹورک کی جو آپ کو جو ہے وہ ضرورت جو پیش ہے وہ مختلف جو ہے وہ کام کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ اس کے مقاصد ہے جس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس کی ضرورت جو ہے وہ پیش ہے. کمپیوٹر نیٹورک کین بی اسٹیبلشڈ فار ڈفرنٹ نیڈس. کمپیوٹر نیٹورک جو ہے وہ مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا بنایا گیا. سم پرپزز آر یوزز آف کمپیوٹر نیٹورک آر ایز فالو. کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹورک کے جو ہے وہ مقصد اور جو ہے وہ استعمالات مندرجہ ذیل ہیں. تو اس کے جو ہے وہ استعمالات کے اندر پہلا جو آپ کو اس کا یوز ہے وہ ہے فائل شیئرنگ. کہ جو ہے وہ فائلوں کو شیئر کرنے کے لیے یا ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے کمپیوٹر نیٹورک بنانے کی جو ہے وہ ضرورت پیش ہے. تو کمپیوٹر نیٹورک کو استعمال کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنے گھر میں بیٹھے یا اپنے آفس میں بیٹھے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی فائل جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں سینڈ کر سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے سے جو ہے وہ معلومات کوئی بھی فائل جو ہے وہ ریسیو بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ کوئی آپ کے پاس ایجوکیشن کوڈ ہے جس نے جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کی جو ہے وہ بنائی ہے, تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ بورڈ کے اندر جا کے وہاں سے جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ لینی پڑے, بلکہ وہ ڈیٹ شیٹ جو ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب اسٹوڈینٹس کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ سے جا کے اس فائل کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اسٹوڈینٹس کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم بچے گا. بہت زیادہ جو ان کو مطلب کہ جانا پڑنا تھا وہاں سے جا کے لینی پڑنی تھی, تو وہ جو ہے وہ ان کا سارا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے گا, ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا. تو پہلا جو پرپس تھا کمپیوٹر نیٹورک بنانے کا وہ ہے فائل شیئرنگ. اب جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. کمپیوٹر نیٹورک کین بی یوز ٹو شیئر فائلز. کمپیوٹر نیٹورک جو ہے وہ فائلز کو شیئر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. دا فائلز کین بی شیئرڈ امانگ دا پیپل آل اوور دا ورلڈ یوزنگ دا انٹرنیٹ. فائلوں کو جو ہے وہ کہتا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے شیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر the educational board can share the date sheet file with all students. کہ جو ایجوکیشنل بورڈ ہوگا وہ ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ سارے اسٹوڈینٹس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. The students do not have to visit the board office to get the date sheet. اسٹوڈینٹ کو جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ لینے کے لیے جو ہے وہ بورڈ آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. They can download from the internet. وہ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اپنی ڈیٹ شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. It saves a lot of time and effort. یہ جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ ان کی بچا دے گا. تو جس طرح سے یہ جو ہے وہ اس نے ڈایاگرام کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ فائل شیئرنگ دکھائی ہوئی ہے. تو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ فائلیں انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں جا رہی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑے ہیں. پکچر کے اندر ویسے ہی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کلوز دکھایا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو کمپیوٹر پڑا ہے یہ جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر پڑا ہو اور یہ والا جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر کسی اور جو ہے وہ کنٹری کے اندر پڑا ہو. تو اس طرح سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو فائلیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے پاس وہ ہے ہارڈ ویئر شیئرنگ. تو کمپیوٹر نیٹورک کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنے ہارڈ ویئرز کو بھی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہارڈ ویئر کو شیئر کرنے کا یہاں جو ریسورسز ہیں ان کو شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. اب ہارڈ ویئر شیئر آپ کس طرح سے کرو گے؟ اگر جو ہے وہ آپ نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, اس نیٹ ورک کے اندر 10 یا 20 کمپیوٹر ہیں آپ کے پاس اور ان سب کے سب یوزر جو ہیں وہ 20 کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ پرنٹر کی ضرورت ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک کمپیوٹر کے ساتھ ایک پرنٹر اٹیچ کر دو گے. تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ
जो है वो कॉस्ट आएगी। हर एक प्रिंटर अगर लेंगे तो आप 20 प्रिंटर लेंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो आपके पैसे लगेंगे। तो इसके बजाय आप क्या करेंगे, आप जो है वो नेटवर्क बना लेंगे और उस नेटवर्क के अंदर जो है वो आप प्रिंटर भी लगा देंगे और वो प्रिंटर जो होगा उस प्रिंटर को सारे के सारे यूजर्स के साथ शेयर कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक यूजर, जितने भी जो है वो नेटवर्क के अंदर हैं, वो सारे के सारे यूजर जो है वो उसी एक प्रिंटर को या उसी एक स्कैनर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो है वो अगर 20 लोग थे तो आपने एक प्रिंटर ले लिया, आपके जो है वो 19 प्रिंटर के पैसे जो है वो नहीं लगेंगे, वो जो है वो सेव हो जाएंगे, वो जो है वो आपके पास बच जाएंगे। तो ये जो है वो आपको हार्डवेयर शेयरिंग का फायदा होता है और जो है वो हार्डवेयर शेयरिंग की इसलिए जो है वो जरूरत पेश है। आप जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड टू शेयर कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड हार्ड ड्राइव्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं वो कहता है कि हार्डवेयर को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया और हार्ड ड्राइव होगी। तो इसी तरह से आप जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर हार्ड ड्राइव को भी शेयर कर सकते हैं। तो हार्ड ड्राइव को शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है वो इस तरह से होगा कि आप एक पावरफुल कंप्यूटर ले लेंगे, बाकी जो है वो आप नॉर्मल कंप्यूटर ले लेंगे। तो जो पावरफुल कंप्यूटर होता है उसको सर्वर बोलते हैं। तो उस सर्वर के साथ आप अपने बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स को जो है वो अटैच कर देंगे। अब उस सर्वर के अंदर आपका सारे का सारा डाटा जो है वो पड़ा होगा, तो जिस भी कंप्यूटर को जो भी डाटा की जरूरत होगी तो वो उस सर्वर से ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको हर एक कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क लगाने की, हार्ड ड्राइव लगाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह भी आपके जो है वो काफी ज्यादा पैसे बच जाएंगे। उसके बाद एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, मिसाल के तौर पर जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हैं, कैन एक्सेस द सेम प्रिंटर अटैच टू द नेटवर्क। वो जो है वो एक ही प्रिंटर तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं जिसको आपने नेटवर्क के अंदर जोड़ा हुआ है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ये जो है वो पैसे जो है वो कम करने में, आपका खर्च कम करने में मदद देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपके पास एप्लीकेशन शेयरिंग, कि आप जो है वो एप्लीकेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है आपके पास एप्लीकेशन शेयरिंग। तो एप्लीकेशन शेयरिंग के अंदर जो है वो क्या होगा कि आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं उनको जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर क्यों करना है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे मखसूस या जो है वो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई यूजर या जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल काम के लिए जो है वो अपने लिए खास तौर पर बनाती है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको जो है वो बने बनाए नहीं मिलते, वो जो है वो स्पेशल जो है वो आपकी नीड के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलपर होता है वो आपको बना के देता है। जिस तरह से आपने जो है वो बैंक के अंदर देखे होंगे सॉफ्टवेयर, तो बैंक वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको बने बनाए जो है वो कहीं से भी नहीं मिलते, वो आपको जो है वो स्पेशल बनवाने पड़ते हैं आपकी जरूरत के मुताबिक, आपकी जो है वो नीड्स के मुताबिक। तो फिर जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इस तरह आपने जो है वो मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो अपना जो है वो सारा हिसाब किताब जो है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। आपने जो भी चीजें परचेज की हैं उनका बिल जो है वो कंप्यूटर से बना के आपको देते हैं। तो वो वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेशल सिर्फ वो ही लोग जो है वो अपने लिए बनाते हैं, आपको बने बनाए नहीं मिलते। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो अगर जो है वो आपने अपने नेटवर्क के अंदर, फॉर एग्जांपल आप बैंक की है, बैंक के अंदर मुख्तलिफ जो है वो यूजर होते हैं जो काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो अब जो है वो अगर हर एक इंसान के लिए, हर एक यूजर के लिए अलग से जो है वो एक सॉफ्टवेयर लिया जाए, उसकी जो है वो उसको परचेज किया जाए, तो आपके जो है वो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि एक ही सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया जाता है और उसकी कॉपीज करके बाकी सारे कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो सेव कर दी जाती है। तो फिर इससे क्या होता है, इससे भी जो है वो आपके बहुत ज्यादा मतलब के पैसे जो है वो बच जाते हैं। आप जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। द इंडिविजुअल सेंस्ड
कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली। कहता है कि अलग अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना वो जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा महंगा होता है। द एप्लीकेशन कैन बी शेयर ओवर अ नेटवर्क अमंग मैनी यूजर टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो आप क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को जो है वो नेटवर्क के थ्रू मुख्तलिफ यूजर के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं, जिससे आपके बहुत ज्यादा पैसे बच जाते हैं। इन दिस केस, इस सूरत हाल में, द यूजर डज नॉट नीड टू परचेज सेपरेट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर ईच कंप्यूटर। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो यूजर को हर एक यूजर के लिए जो है वो आपको सेपरेट अलग अलग से जो है वो कॉपी सॉफ्टवेयर की परचेज नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द मैनेजर, कैशियर एंड एटीएम यूजर यूज द सेम एप्लीकेशन। कहता है कि मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर मैनेजर, कैशियर और एटीएम यूजर जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब क्या किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर लेके सबके साथ जो है वो उसको कॉपी करके इंस्टॉल कर दिया जाएगा। द बैंक बैलेंस ऑफ द यूजर अपडेटेड इन वन ब्रांच इज शोन इन ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। और हर एक ब्रांच के अंदर जो है वो क्या होता है कि जैसे ही जो है वो आपका बैंक बैलेंस, आपने कोई पैसे जो है वो अपने अकाउंट से निकलवाए हैं या जो है वो अपने अकाउंट के अंदर जो है वो जमा करवाए हैं, तो क्या होता है, उस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, हर एक ब्रांच में एक ही टाइम में जो है वो आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो जाता है, अपग्रेड जो है वो हो जाता है। तो क्योंकि उन्होंने सेम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होता है और वो जो है वो उनका नेटवर्क बना होता है, सारी की सारी ब्रांचेस आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो इसलिए जो है वो सेम टाइम पे हर जगह पे जो है वो आपका बैलेंस अपडेट जो है वो हो जाता है। तो ये जो था वो हमारा आज का जो है वो लेक्चर था, जिसके अंदर जो है वो हमने नेटवर्क को शेयर करने के और जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क की आपको क्यों जरूरत पेश आई उसको जो है वो पढ़ा। ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।